Good morning, dear children. Today we will study about the topic who will provide the labor. Chapter 1, Story of Village Palampur. Who will provide the labor? Now, basically we have three kinds of farmers. Small farmers कौन होते हैं? जो लैंडलेस होते हैं, don't have any land, having small plots. Medium farmers, those who are having medium land, and large farmers having big area of land. We discussed this in our last session. Okay, so जो landless farmers होते हैं, they work on their own field and they work on medium and large farms also because their field is very small. Small farmers में हम basically वो farmers include करते हैं those who are having less than 1 hectare of land. Okay. तो working only on their field will not give them sufficient income for their survival. So for extra income, they have to work on maybe medium farmers' land or the large farmers' land. They work on others' farms and they do get involved in other non-farming activities also. There are various kinds of non-farming activities which we will study at the end of this session. Their wages also vary from region to region. What kind of village is there? What kind of area is there? Activity wise also and season wise also. Like which crop season is that? What kind of activity is there? Harvesting हो रही है या sowing हो रही है. कुछ farmers को सिर्फ harvesting के लिए भी appoint किया जाता है. Wages इसी हिसाब से आपकी जो wages होते हैं वो अप डाउन होते हैं. ठीक है. देन कम्स मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं दे हायर स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स फॉर वेरियस वर्क. इफ यू विल रीड द चैप्टर, इन द चैप्टर यू आर गिवन अ स्मॉल कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्मॉल फार्मर्स. आप खुद रीड करना उसको. दोनों अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Okay, one is saying I am having very less income, one is saying I am having very big loan on me, then one is saying ki we are working on the large farmers land, we are working on the medium farmers land, but the wages are very less and they are using many new kind of technologies. Now they are not doing the work manually. So when you are using new technology that reduces the manual labor, अगर manual labor कम हो जाता है तो obviously the need of labor is also reduced. Need of labor is also reduced. अगर अच्छे instruments यूज कर रहे हो, ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हो, प्लोइंग के लिए ज़्यादा instruments यूज कर रहे हो तो आपको लेबर की ज़रूरत नहीं है. This is the reason why small farmers or landless farmers are not getting good job or good income. Then they have to go here and there to find out other sources of income. जैसे डाला है, डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर. इसके पास अपनी कोई लैंड नहीं है. गवर्नमेंट ने रूल बनाया है 300 पर डे देना है. हर फार्मर को जो हायर कर रहा है लेबरर्स को उसको 300 पर डे देना है. एक्चुअल वेज उसको कितनी मिलती है? 160 पर डे. अब आप सोचोगे जब गवर्नमेंट का रूल इतना है तो उसने 160 पे क्यों यस किया? हैवी कंपटीशन. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेडी हैं 160 में भी काम करने में. सो डाला इज ऑल्सो रेडी. सो ड्यू टू हैवी कंपटीशन शी इज रेडी टू वर्क इवन एट लेस वेजेस. देन कम्स नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग. कैपिटल मीन्स मनी विच वी हैव टू इन्वेस्ट इन फार्मिंग. स्मॉल फार्मर्स को जब अपने लैंड पे प्रोडक्शन करनी होती है उनको पैसा कहाँ से मिलता है? दे टेक लोन. अब बैंक्स तो होते नहीं है विलेजेस में. इफ देयर आर बैंक्स, द स्मॉल फार्मर्स आर नॉट सो एजुकेटेड कि वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके. प्लस बैंक्स को सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए उनके पास कुछ नहीं होता है. सो दे प्रेफर टेकिंग फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स. वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है और डेप्ट ट्रैप हो जाता है. डेप्ट ट्रैप का मतलब है उन्होंने एक लोन लिया, मान लो 10,000 का, उसको रीपे करने के लिए उन्होंने 20,000 का एक लोन और ले लिया. To remove this loan, they took another loan, so they are caught in the debt trap.
ओके, देन मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं उनकी अपनी सेविंग्स होती हैं. जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कुछ पार्ट वो अपने पास रखते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट दे सेल इन द मार्केट विद द प्रॉफिट ऑल्सो. इसमें प्रॉफिट भी ऐड करते हैं अपना. तो जो भी उनकी सेविंग्स होती हैं, जो भी उनकी प्रॉफिट होते हैं, दैट इज द कैपिटल विच दे यूज, विच दे इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट सीजन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, फार्मर्स ने जो भी प्रोड्यूस किया है, उसका थोड़ा सा पार्ट हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं. अगर हमने वीट ग्रो किया है सपोज, तो थोड़ा सा वीट हम अपने घर के लिए रख लेंगे. रेस्ट विल बी सोल्ड इन द मार्केट. जो स्मॉल फार्मर्स होंगे उनका छोटा सा फार्म है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी कम होगा. तो जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से वो सेल्फ कंजम्पशन का रखने के बाद रेस्ट व्हेन दे गिव टू द मार्केट, दैट इज वेरी मार्जिनल क्वांटिटी. सो बेसिकली मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर सप्लाइंग प्रोड्यूस टू द मार्केट. छोटे फार्मर्स इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स ने ज्यादा मार्केट को कंट्रीब्यूट किया है, ज्यादा सप्लाई दी है, तो ऑब्वियसली उनकी जो सेविंग्स हैं वो लोन्स देने में, दे गिव द लोन्स टू द स्मॉल फार्मर्स, लोन्स देने में और न्यू एसेट्स बाय करने में. जैसे मे बी एनी फार्मर विल थिंक नेक्स्ट ईयर वो एक नया ट्रैक्टर ले लेगा, या गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ले लेगा, करेक्ट, या ट्यूबवेल्स नए लगवा लेगा. सो दीज काइंड्स ऑफ एसेट्स दे आर बाइंग, दे आर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ एसेट्स, राइट. इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लास्ट टॉपिक आता है नॉन फार्म एक्टिविटीज. नॉन फार्म एक्टिविटीज में बेसिकली हमारे पास 4 हैं: डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्ट. डेयरी में आपके एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, पोल्ट्री एंड ऑल दैट. डेयरी में हम क्या करते हैं, फीडिंग, अपने कैटल को फीड करते हैं ग्रास से, ज्वार से और अलग अलग उससे. देन द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज. रायगंज में कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स हैं. जैसे आपका ये मदर डेयरी का दूध बनता है, इट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में इनको चिल करके पैक करके सेल किया जाता है. सो दे आर इन रायगंज. दो जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है, दे आर, दैट इज सोल्ड इन द विलेज एरिया ऑल्सो, एंड द सरप्लस इज सोल्ड टू द, ट्रांसपोर्टेड टू द रायगंज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जिसमें बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, सिंपल मशीन्स यूज होती हैं और उसमें पूरी फैमिली एक साथ काम करती है. ठीक है, जैगरी, पिकल्स, पापड़ मेकिंग, बास्केट मेकिंग, बैग्स मेकिंग, इन सब चीजों में होती है. देन कम्स शॉपकीपिंग. शॉपकीपिंग यू ऑल नो, ग्रोसरी की शॉप्स हैं, गारमेंट्स की शॉप्स हैं, स्टेशनरी शॉप्स हैं, गिफ्ट आइटम्स की शॉप्स हैं, तरह तरह की शॉप्स होती हैं मार्केट में. कंप्यूटर सेंटर्स भी आजकल ओपन होने लग गए हैं. लाइक इफ एनी 1 or 2 people आर एफिशिएंट इन यूजिंग द computers, they know how to use it, they can teach the students also, they can teach the other people also, right. So it comes in shopkeeping. And last comes transport. Transport के बारे में हमने already starting में पढ़ा था. Various kind of transports are used in Palampur for one or the other activity, maybe to transfer the goods and services, maybe to transfer the people also, right. So this was your chapter 1. We come to the end. I'll give you the assignment. Do that in your notebooks. Thank you.